अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू क्लास 7? कैसे हैं आप सब? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर साइंस एंड साइंटिफिक मेथड. The objective is that at the end of this session, student will be able to discuss what is science. Okay, now we are going to start a new chapter, first chapter, science and scientific method. Objective is that discuss about science and technology. This is your unit flow chart. Science skills. Science is everything about us. Scientists observe and record results. Scientists use instruments to make measurements. Scientific information is recorded in the form of data. This is the unit flow chart. Now we are discuss about science. The introduction of science is the name of observation, thinking, finding reasons of everything around us. Science is a collection of human writing, wonderings and experimentations. The history of science is as old as the first human beings on earth. Now we are discuss about science and technology. So what is science? The word science is derived from a Latin word scientia, which means to know. So science is a system of knowledge attained by any means. Technology is the practical application of scientific knowledge. The word technology is derived from the Greek word technologia. So the science, अगर हम बात करें तो साइंस जो है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है. यूनानी ज़बान के दो लफ्ज़ हैं जिन्हें हम कहते हैं सेंटा. इसका मतलब है कि नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में हासिल करना, किसी चीज़ के बारे में जानने को हम क्या कहते हैं? साइंस. और टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी क्या है कि साइंटिफिक नॉलेज को जो प्रैक्टिकली हम काम करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो होती है वो टेक्नोलॉजी कहलाती है. और ये ग्रीक वर्ड टेक्नोलॉजिया से निकली है. नाउ द फर्स्ट चैप्टर एंड द पेज नंबर 1. I read page number 1. It is the study of anything that can be examined, tested and verified. The word science is derived from the Latin word scientia, which means to know. So science is a system of knowledge attained by any means. Technology is the practical application of scientific knowledge. The word technology is derived from the Greek word technologia. Science deals with the observation and analysis. Scientists discuss, compare discoveries and existing knowledge on the basis of advancement and development. Knowledge of science is constantly updated and refined. Scientific research is divided into two fields, basic science and applied science. In basic science, scientists work at academic level, and in applied science, they go for practical implementation of knowledge gained from basic science. As a result, technology develops and helps mankind to benefit from it. The principles of latent heat was discovered many years ago, but its practical form came in 1876 with the invention of refrigerator. Fields of science are commonly divided into two major types, natural science and social science. Natural science is the study of natural phenomena, that is biological life, and social science is the study of human behavior. This is in page number 2. साइंस क्या है जनाब? साइंस के बारे में हम अगर किसी भी चीज़ के बारे में जानने को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं. टेक्नोलॉजी हमने कहा कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो हम साइंटिफिक नॉलेज को रिसर्च करते हैं, जो हम साइंटिफिक नॉलेज हासिल करते हैं, उसको अगर हम प्रैक्टिकली वर्क करके देखें, हम उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करें, तो वो क्या कहलाती है? टेक्नोलॉजी कहलाती है. और टेक्नोलॉजी के वर्ड से टेक्नोलॉजी निकली है. साइंस जो है वो ऐसे ही हम काम नहीं कर सकते जब तक हम उसको ऑब्जर्व ना करें, उस पर कोई काम एनालिसिस ना करें, उस पर हम उसको अच्छे तरीके से जाने नहीं, तो हम जो है वो साइंस के बारे में कोई डिस्कवरीज, कोई नॉलेज हासिल नहीं कर सकते. बेसिक इंफॉर्मेशन की बेस पे हम साइंस को जो है वो
ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस, यानी हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करें और एनालाइज करें तो साइंस जो है वो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। यानी नॉलेज ऑफ साइंस जो है वो हमें कैसे हासिल होगी कि हम किसी भी चीज़ की पहले ऑब्जर्व करें, फिर उसके बारे में सोचें और फिर उसके बारे में उसके क्वेश्चन आंसर्स करके और उसके बारे में हम नॉलेज हासिल करें। साइंटिफिक रिसर्च अगर हम करें तो डिवाइड इनटू टू फील्ड, बेसिक साइंस एंड अप्लाइड साइंस। अगर बेसिक साइंस बात करें तो साइंटिफिक बेसिक साइंस scientists work of academic level, and in the applied science they go for practical implementation of knowledge. बेसिक साइंस क्या है? एकेडमिक लेवल के बेस पे हम यानी थियोरेटिकल हम जो बात करते हैं, और अप्लाइड साइंस का है जो कि हम प्रैक्टिकली काम करते हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज हासिल करते हैं, जो कि हमें थियोरेटिकल साइंस से या बेसिक साइंस से हासिल होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अप्लाइड साइंस। तो the definition of science is the word science has been taken from a Latin word scientia, which means knowledge. Its old name was natural philosophy. अगर पुराने नाम की हम बात करें तो वो क्या कहलाता है? Natural philosophy. Science is defined as the knowledge gained through observation and experimentation known as science. Observation और experimentation की बेस पर जो चीज़, जो नॉलेज, जो इल्म हासिल किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अगर हम डिवीजन ऑफ साइंस की बात करें तो डिवीजन ऑफ साइंस देयर वर अ ह्यूज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अप टिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी तक बहुत बड़े पैमाने पे डिविजन्स की जाती थी। इट वाज फाउंड नेसेसरी ऑफ टू क्लासिफाई द स्टडी ऑफ नेचर इनटू टू ब्रांचेस। अब जो है वो हमने क्या कर दिया, मतलब दो ब्रांचेस पे, मेन दो ब्रांचेस हैं जिन्हें डिवाइड कर दिया गया, द बायोलॉजिकल साइंस एंड द सोशल साइंस। द बायोलॉजिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अगर हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करें तो वो बायोलॉजिकल साइंस कहलाती है। द फंडामेंटल बायोलॉजिकल साइंस इज नेम्ड एज बायोलॉजी। अगर हम फंडामेंटल बायोलॉजिकल साइंस की बात करें, या फंडामेंटल बायोलॉजिकल साइंस का नाम ही क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट, बॉटनी एंड zoology. बॉटनी इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड zoology इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। पौधों के बारे में जो कुछ हासिल किया जा सकता है वो बॉटनी, और जानवरों के बारे में जो कुछ हासिल किया जा सकता है वो zoology। अगर हम पूरी साइंस की बात करें तो साइंस इज द फंडामेंटल बायोलॉजिकल साइंस इज नेम्ड एज बायोलॉजी। सो साइंटिफिक रिसर्च इज डिवाइडेड इनटू टू फील्ड्स, बेसिक साइंस एंड अप्लाइड साइंस। बेसिक साइंस, इन बेसिक साइंस साइंटिस्ट वर्क एट एकेडमिक लेवल, यानी साइंटिस्ट जो है वो एकेडमिक लेवल पर काम करते हैं, वो बेसिक साइंस कहलाता है, थियोरेटिकल वर्क। अप्लाइड साइंस दे गो फॉर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज गेन फ्रॉम बेसिक साइंस, यानी अब जो थियोरेटिकल काम हो गया था, जो थ्योरी मिल गई थी, उसकी बेस पे जो प्रैक्टिकल किया गया वो क्या कहलाएगी? अप्लाइड साइंस। सो द फील्ड ऑफ साइंस आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स, नेचुरल साइंस एंड social science. Now physical science deals with the study of non-living things. अगर हम बात करें physical science की तो वो क्या डील करती है? non-living things को डील करती है। So physics is an important and basic part of physical science. Other disciplines includes chemistry, geology, astronomy and mathematics. So physics is the fundamental of all physical sciences. So natural science, it is the study of natural phenomena, that is biological life, and social science it is the study of तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि साइंस क्या है, साइंस को हमने कैसे डिवाइड किया है, साइंस को डिविजन्स में किया है, साइंस को हमने किसमें बायोलॉजी, फिर हमने पढ़ा नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, बेसिक साइंस, इन सब पे डिवाइड किया है। तो मेन क्या है कि साइंस को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस की जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। Scientific method, it is a technique to investigate, acquire new knowledge by correcting and integrating previous knowledge. It is a way of asking and answering questions by making observations and doing experiments. The steps involved in the scientific methods are, scientific method क्या वो तरीक़ेकार है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम साइंस की कोई भी चीज़ को या साइंस को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं, फिर हम कोई प्रॉब्लम ढूंढते हैं, फिर एक उसका मफरूज़ा ख्याल किया जाता है, हाइपोथेसिस करते हैं, फिर डेटा को कंपाइल किया जाता है, और ये सारे स्टेप्स इंक्लूड करके हम साइंटिफिक मेथड करते हैं। लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको अपने नेक्स्ट सेक्शन में साइंटिफिक मेथड को डिस्कस करूँगी।
नेक्स्ट उसमें हम इंशाल्लाह साइंटिफिक मेथड डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम पूरा डिस्कस करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।